Hi everyone, this is Sohaib Hassan, founder and CEO of Brand and Media Running a Private Limited. Today is a very special day for us at BMLS Studio. As you can see कि हमने पूरा अपना studio setup किया है and now we are back with season 3 and this is first episode of season 3. And hence for that what we have done is कि हमने आज की बहुत ही special guest को बुलाया है. But just to set the preamble first, आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं. हम बहुत परेशान इन्फ्लेशन की वजह से हुए हुए हैं. पाकिस्तान ऑल्दो बाय पॉपुलेशन इट्स द 5th लार्जेस्ट कंट्री, 240 मिलियन प्लस यहाँ पे लोग रहते हैं. बहुत सारे मुल्कों से हम बड़े हैं, लेकिन इवन देन हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं. आई ट्रैवल अ लॉट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर. वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट हमसे बहुत पहले आ चुका था. बट द बेस्ट पार्ट इज़ पाकिस्तान में हर चीज़ देर से आती है लेकिन दुरुस्त आती है. हमारे यहाँ चीज़ों के आने की डिलेड होती हैं चीज़ें आने में, लेकिन वंस दे आर देयर तो उस पर हमने देखा है कि पेनिट्रेशन रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. एंड इसी वजह से वी कुडंट फाइंड एनी बेटर गेस्ट दैन मिस हुमा याया खटक, who is CEO of Alpha Bikes, which is a company of Alpha EV Technologies Private Limited. I was going through your profile, mashallah. First of all, many congratulations. You have quite a lot of achievements. तो मुझे समझ नहीं आया था, but मैंने कहा कि चलें आपसे, मतलब I could see a clear zigzag. You have worked in telecom, you have worked in foreign markets as well. एंड नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि यूजुअली उसके अगेंस्ट स्टोरी होती हैं जो हम लोग करना चाह रहे होते हैं. सो नाउ कमिंग बैक एंड सेटिंग अप योर ओन स्टार्टअप विद इन अ न्यू डोमेन, अ डेवलपिंग इंडस्ट्री. सो हाउ हैज़ योर करियर बीन सो फार? I think it has been a zigzag. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. But what I would like to say is that the zigzag has helped me. So I see a lot of youths जो हमारे पास काम करते हैं and we move them from one department to the other so that they can learn better. मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि जो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से उनको बता सकती हूँ कि look, this is how I have made it thus far. Is when one says to me, look, I don't want to be working in marketing and I want to do sales. I don't want to do sales. I want to do customer experience. And you know when you are running a company and when you're at a position where you have to look at everything, that zigzag that you've done is precisely what helps you get there. Exactly. So you're right, it has mostly been telecom. Telecom ke baad it was for a while energy. I was heading customer experience for K Electric. I think KE में जो energy का जो एक exposure मुझे मिला है ना, and the way we would see कि जब भी fuel prices बढ़ती हैं तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, and the problems that people have, that's what really made me think that this is where I think this is where we should have been many years ago. जैसे introduction में आपने कहा, देर से आए पर दुरुस्त आए. There are a lot of electric bikes companies coming in. ज़्यादातर focus जो मैंने देखा वो जो स्कूटी शेप बाइक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा focus है आजकल. But when I researched more about Alpha, the thing that astonished me वो एक पूरी proper 1 to 5, लेकिन विदाउट पेट्रोल ऐसा लग रहा है कि 1 to 5 को इलेक्ट्रिक करा दिया है किसी ने. तो सेम वही शेप, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू क्रिएट सच अ लोकल प्रोडक्ट फॉर द मार्केट दैट यू आर सर्विंग? I think in very simpler way अगर मैं आपको explain करूँ ना, when we started this, we didn't want to introduce a fashion that will be out one day. एक दिन आया और एक दिन चला गया. The other thing is कि ये सारा concept ही एक need से निकला था. So when you're saying I've started the company, मैं थोड़ा सा आपको I'll add to the information. Sure. So we are you may have heard of the group WaveTech. We essentially WaveTech जो है वो काफ़ी सारी बड़ी banks की ATM machines भी बनाता है, and you've got ये queue management systems and tech company है. So we're a sister concern of that company. Now वो जो DNA चला आ रहा था ना कि we have to solve a problem. That's where Alpha essentially came from. Agreed. Where we would hear a lot of people complaining that the quality of life, there is no quality of life because we can't afford a better living anymore.
and that's when we thought, okay, let's give them a solution where they can be, there's some peace up here. तो उसको मद्देनजर रखते हुए, and देखिए, again, it's a gender thing, and we will come to that later as well. But a lot of the men population जो कि essentially responsible होते हैं, they're the main bread earners for Pakistani families. तो आपकी बाइक से यूज़ कर रहे होते हैं, और आपको बाइक भी ऐसी चाहिए है कि जिसके ऊपर वो वेट भी, पेलोड भी उसका पूरा कर सके, वेट बेयरिंग भी कर सके, चढ़ाई उतराई भी कर सके आपको. That's why we thought कि अच्छा ठीक है, what is the most popular, and how do we get close to that, and how do we still sort of make sure that the need is met. That's why we thought of Alpha EV125 and said let's just give people what they really need. अभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि यार एक फीमेल CEO हैं और EV बाइक की, तो कुछ क्या लोग पहले से प्री कंसीव नोशंस बना देते हैं, जैसे आप यू मस्ट बी अटेंडिंग हाई लेवल मीटिंग्स, तो क्या कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं, अजम्पशंस होती हैं लोगों की? आपने हैव यू एवर फेल्ट सच सिचुएशन? अगर हैं भी, ठीक है, तो या तो वो कम्युनिकेट मुझ तक कर नहीं पाई, या मैंने इतना बड़ा ब्लॉग बनाया हुआ है कि वो होते हैं. So look, I mean, it's you can't deny what's there. So yes, there are there, and also because मेरे से पहले there has been no female auto industry की कोई CEO रही नहीं है. So I think that in itself is a bit of a where did she come from? Also the fact that जो आप वो zigzag वाली बात कर रहे थे, you know, when people look at my profile at एक जगह पे तो they're very impressed कि अच्छा ठीक है, she's done this, she's worked abroad, she's worked for this company, etc. But how is she going to do this? But again, I would say कि people can have preconceived notions, people can think, and it's their right to think as well. It's really how you address them in the kind of product that you're delivering, and in the kind of work that you're doing. मैं तो कभी किसी को ये भी नहीं explain करने की कोशिश की कि अच्छा मैं क्यों हूँ यहाँ पे. I let Alpha explain everything. I saw one of your pictures in which you were, because it was a picture I couldn't see if you were riding or not, but you were at least on the bike. So I think owning the product, जब आप खुद किसी चीज़ को, जैसे हम मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, तो आप जब तक खुद उस प्रोडक्ट में बिलीव नहीं करते तब तक आपके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है उसको सेल आउट करना. तो आप खुद भी अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करती हैं कैसे? एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बीन सो फार? I try to do that as much as possible. हमने जब हम कमर्शियल लाइफ के करीब थे ना, तो वो टेस्टिंग वगैरह तो सारी हुई भी थी, एंड I'd seen it, and मैंने चलाई भी थी. बट वो जो जिस तस्वीर का आप जिक्र करें, वो एक्चुअली उस दिन की है कि जैसे उन्होंने मुझसे साइन ऑफ मांग रहे थे कि अच्छा अब हम इसको जो है वो भेजने लगे हैं, we're going to start selling it. I said absolutely not until I sat on it, and I've actually taken a ride, and I was that day I was genuinely proud of what we had made, because मैं फिर बोलूँगी, हम ये जो ऊपर वाली चीज़ें वो देखते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी क्या होगी. I think it was the most silent, quiet. I had to remind myself कि हम रोड्स की बात करते हैं, सस्पेंशन, everything was so great, and I made sure कि मैं हर खड्डे के अंदर जाऊँ उसके और देखूँ. It was a great experience. मैं ये सोचा था कि अभी तो जैसे थोड़ा सा जो एक हम स्टेट से गुजर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक और पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हुई है, बट अगेन अगर हम 1-1.5 महीना पहले चले जाएं तो अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि यार पाकिस्तान से बाहर जाते हैं हम, वहाँ पे चाहे जॉब करें, बिज़नेस करें, बट आपका करियर अगेन zigzag में ना थोड़ा सा ये भी रहा कि यू केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन तो ये और अगेन चलें अभी तो ये जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कोशिश कर रहे हैं वापस पाकिस्तान आने की, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक मिडल ईस्ट, राइट? बट आपने तो ये डिसीजन उससे पहले लिया. सो व्हाट मेड यू थिंक दैट, एंड एज यू मेंशन के आपको यहाँ पे बाइक जो टेस्ट करनी पड़ी तो आपने एक खड्डे में जाके वो खुद से, तो ऐसा क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट सर्विंग द कंट्री? I think in the first place जब हम गए थे, me and my husband, my kids, we never thought that we will never come back. It was always in our minds that we will come back. However, having spent all of that time abroad, आपके ऊपर ना एक थोड़ा सा
इन कुछ मुल्कों से एग्जिट बैरियर आपके दिमाग में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देन व्हेन यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान यू गॉट द सेम रोड्स, यू गॉट लोड शेडिंग, यू गॉट पानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है एट्सेट्रा। बट मेरा ये ख्याल है कि the green inside me is a little too dominant, and मैं उधर देखा करती थी कि we had some of the smartest brains working for some very average companies, sure getting paid a decent amount. दूसरी चीज़ मैं देखती थी कि from a distance हमें complain करने की बहुत आदत है। So वो एक दिन इसी तरह ही हुआ, and I said look, either I will not complain about the situation which is not going to happen, and if I am going to complain then I'm not going to complain from miles away, from oceans away. It's got to be in this country. So really it's very cliche to say this, but for the love of the country. My next question is कि आपको ये कितना मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान में जैसे although I have seen especially women riding वो स्कूटी वाली बाइक, एंड फॉर अ वेरी नॉर्मल, क्योंकि जैसे आप ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, यू फाइंड सम women जिसके बैग पे एक स्कूल बैग होगा और उसके आगे एक बच्चा बैठा हुआ होगा, ठीक है, तो वो मतलब डेली कम्यूट के लिए भी और काम वाले हैं कि ऐसे खाली शुगल मस्ती के लिए नहीं, प्रॉपर कामों के लिए भी यूज़ हो रही है। तो बट डू यू स्टिल फाइंड, जैसे आपके पास सेल्स आती होंगी तो लोग क्या मतलब लड़कियां प्रेफर कर रही हैं इस टाइप का कम्यूट, स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची? आपको क्या दिखता है कि हम फ्यूचर में कितना इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई भी चेंज आता है ना, आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें, एनीथिंग दैट्स नॉट ए नॉर्म इट विल नॉट एग्जिस्ट, and then it will start existing a little bit, and then there is a tipping point जिसके बाद आपको याद भी नहीं होता कि अच्छा कोई टाइम ऐसा था भी जब नहीं होता था, and this has been seen historically as well. हम अपनी क्वेरीज के अंदर भी, और मुझे अब रोड पे भी जब नज़र आती है, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, मुझे लोगों ने बहुत कहा, there was a company that I wanted to take the bike, and उस वक्त हमारा स्कूटर wasn't ready, right? And I said I want to pitch it to women, and people said, well, no, women don't usually, उनको ये मसला होता है, उनको वो मसला होता है. There are so many women who are willing to now. I would have to really compliment the men of the house as well, because हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि बड़ी डिपेंडेंसी एक परमिशन की होती है, either on the fathers or the brothers or the husbands. I'd have to say that आप लोग बहुत ज़्यादा encourage कर रहे हैं ख़वातीन को, so we see more of them on the road, we see more of these requests coming in, so yes, absolutely, there's a shift that's happening. This tipping point करीब हम इंशाल्लाह। एक तो एक ये हर जगह जिस तरह आपने कहा कि हिस्ट्री की आपने रेफरेंस दिया, बट अगेन जब भी कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई थोड़ी बहुत बुराई भी आती है, तो या वरना लोगों के थोड़े से प्री कंसीव्ड जो है वो अजम्पशंस होती हैं, नोशंस होते हैं कि इसमें कि जैसे बारिश हो जाएगी तो फिर बाइक का क्या होगा, या वरना अगर कहीं पे एकदम से मैं ख़राब हो गया, बाइक मतलब इलेक्ट्रिक ही है, जाहिर सी बात है व्हीकल है, तो अगर कहीं पे कुछ बीच रास्ते में ख़राब हो गया, तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कंपनीज़ को एफर्ट्स करने चाहिए? सिर्फ एक चीज़ है, educate people on the product. There are so many products that exist right now जो कि हमें पहले पता भी नहीं होता था। आपने मुझे बताया, again, I mean, it's one of the simplest examples to give really, but वो एक कैसेट प्लेयर होता था पहले, और उसके अंदर तो आप वो फिर APS आया, और फिर उससे हम मूव कर गए अपने फोन्स पे, म्यूजिक पे, the whole hardware is so different, और ये तो इतना ज़्यादा डिफरेंट है भी नहीं। Really, I think all these companies and people who can who are able to reach more people like you या हम लोग हो गए, सिखाए लोगों को कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किस तरह करते हैं। हम मेरे पास सो पीपल डू हैव परसेप्शंस, एंड कभी कभार हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बता रही हूँ कि अराउंड व्हेन वी स्टार्टेड तो 70 to 80% ऑफ द कंप्लेंट्स वर परसेप्शन एरर्स। परसेप्शन एरर्स इस तरह थे कि मेरी बैटरी, कंप्लेंट आती थी मेरी बैटरी ख़राब है, अच्छा क्या प्रॉब्लम है आपकी बैटरी में, मुझे इतनी रेंज ही नहीं दे रही, and then we would ask them how do you ride it, etc. And then we have this a tracking mechanism उसके अंदर भी where we can see okay आपकी speed generally क्या होगी जो, so
एजुकेट करना कि किसी प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को एक टेक नॉलेज देना इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑल डू. आई एम वेरी श्योर एवरीबडी एल्स इज डूइंग, बट फॉर एग्जांपल एट Alpha we have a very straight direction. My marketing department has a request from my side, or वो लोग I'm very happy to see that they're complying and they believe in it as well. We have portioned a sizable amount only to awareness of the tech, जिसमें the request and the ask is कि आप कहीं पे भी इसके end पे ही नहीं बोलेंगे कि अल्फा खरीदो. I don't want to sell अल्फा बाइक्स उसके ऊपर. I just want to make people understand कि किस तरह बैटरी ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह वेट मैनेजमेंट करेंगे. बारिश अगर होगी तो अगर उसके ऊपर लिखा हुआ भी है या कह भी रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोल बाइक होती है ना वो बंद हो जाती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं बंद होती हैं इस तरह. हाउएवर दैट डजंट मीन कि आप वो एक पडल है उसके अंदर आप चला रहे हैं. You get one of the best phones out there right now. I'm not even going to name any. Just pick one that is the best and that says कि जो है वो पानी के अंदर. There is no such thing as waterproofing. Put that phone in a bucket of water for half an hour. मैं पूछूंगी फिर आपसे कि वो किस तरह चला किस तरह नहीं. So it's our responsibility to explain to people कि अच्छा नहीं बंद होगी. But these are the things that you've got to be careful about. This is what you need to do when you get home. This is the area that you need to clean. So awareness, and awareness is my single answer to this. Again, on my research, I found out कि 1 to 5 भी है, स्कूटी भी है, and as you just mentioned कि एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की और भी सारी आई एम श्योर वो आ रही हैं. तो ब्रांड का जो प्रोडक्ट का डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. सो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अगर मैं बात करूँ कि SEC A या B वाले लोग जो हैं वो स्कूटीज़ अपने लिए एक हो सकता है शायद फ़न राइड के लिए ले लेते हों या ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए जो गाड़ियाँ भी ओन करते हैं. बट अगेन हो सकता है कि कोई बंदा जो अभी CD70 बाइक चला रहा हो वो आपकी 1 to 5 इंस्टॉलमेंट्स पे लेने की कोशिश करे या क्यों जैसे भी, तो वो हो सकता है अपने पेट्रोल बचाने के लिए वो ये कर रहा हो. तो अगेन द ब्रांड इज सर्विंग अ वेरी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ ऑडियंस. सो हाउ डू यू सी पोजिशनिंग योर ब्रांड? कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या चैलेंजेस होंगे कि अल्फा एज अ ब्रांड इज गोइंग टू बी फॉर विच सेगमेंट या कहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा हमारा? मोबिलिटी है ना. सो while there is a very complex way of doing your market positioning and market mix, देखें और आप ये, I've always been a believer of simplifying everything. Really, all you need to know and see is कि अच्छा A, what is the problem? Who are you solving the problem for? And what is it that you're doing? जब आप कहते हैं who are you solving the problem for, that really just very simply gives you your product mix and tells you कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और ये इतने परसेंटेज लोगों का है और इसके अंदर से this is the percentage of people which is the biggest is at the moment doing this और उनका transition to another product किस तरह होगा. And that sort of gives you this segments to target and say कि अच्छा जी इनको हम बेचेंगे. Having said that, आपने मेंशन किया SEC A B. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. यू गो एंड आस्क एनीवन, आप उसको बोलें कि जी आप जो है वो इस लेवल का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हर बंदा अपने आप को देखता इस लेवल के ऊपर है. एंड हम एज अ कॉम थोड़े से ज़रा प्रॉबेबली हमें इसके बारे में थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की भी ज़रूरत है. हम तो ज़रा ज़्यादा ही देखते हैं. The challenge जो actual था ना वो ये था कि we were trying to solve a problem for a specific socio-economic class or for for our brothers and sisters out there जो कि saving करना चाह रहे हैं. वो उस ब्रैकेट में हर ब्रैकेट में बैठे हुए हैं. आजकल students have become very savvy. Parents have finally started teaching their children कि जी खुद अपने पैरों पे खड़े हो. तो वो उसके अंदर ये सारा कवर हो जाता है. अलबत्ता जो मैग्नीट्यूड है वो आपको नज़र आ रहा होता है कि कौन है. So the way it was designed was that it caters to a specific market, but it's slightly higher as well, so that we want to be able to give people something जिसको वो इस्तेमाल करें वो
they feel good about it. नाउ वी शेल मूव. हमने काफ़ी सारी सीरियस बातें कर ली हैं, अब हम थोड़ा सा फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं. Sure. तो आई विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स. यू विल हैव टू से ईदर यू वांट टू किल दिस स्टेटमेंट कि ये नहीं, आई डोंट ओन दिस, या वरना यू वांट टू कीप इट कि हाँ मैं इससे एग्री करती हूँ. Okay. तो हमारे किल और कीप सेगमेंट है. मैं स्टेटमेंट्स बताऊंगा, आपने उस पर ईदर यू हैव टू से किल और कीप. Okay. ओपन प्लान ऑफिसेस गुड फॉर कोलैबोरेशन और आर दे ओवररेटेड? Keep. Keep. A leader who never shows doubt to their team? Keep. Hiring someone with a brilliant CV but zero hunger? Kill. Kill. Right now. The idea that you need an MBA to run a serious company in Pakistan? Kill. 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 Meetings with no agenda and no end time? Murder. Say- Please. सही है. Coming towards round B of same sort of segment, मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा एंड देन यू विल हैव टू आंसर दैट. हमने इसका सेगमेंट का नाम रखा है रीबिल्ड पाकिस्तान. Okay. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने पता नहीं एक वो अनिल कपूर की कोई फिल्म थी जिसमें वो एक दिन के लिए आपको याद होगा वो मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, और फिर उनसे कहा जाता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. Okay. तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिकम द पाकिस्तान ईवी मिनिस्टर या कुछ जो भी एक वो होता है एंड देयर इज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी विद यू, नो ब्यूरोक्रेसी, कोई नहीं रोक रहा, तो आप उस एक दिन में क्या 3 चीज़ें फिक्स करना चाहेंगी? मिनिस्टर वाली तो नहीं है सारी की सारी. एज इन कि I इफ यू think बिकम द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ईवी. तीन को मैं आई थिंक सिंप्लीफाई करके अगर मैं एक पे भी आ जाऊं, या it's got to be made in Pakistan. You've got to have policies. You've got to have that. You've got to have that understanding between entrepreneurs as well. कि ये ख़त्म कर दें. पाकिस्तान used to be a certain country जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी. और अभी तो मैं नाम लेना शुरू कर दूँगी क्या क्या चीज़ें हम मतलब एक पेन की इंक हम import करते हैं, which is not such a great thing. So I think the one thing that I would really, and this is not just for on the government level, I would say, but really bring that made in Pakistan back. जबरदस्त. Bring that made in Pakistan back. That's the one, and that has then multifacets. वो फिर 3 नहीं है, वो फिर 5-6 हैं जो मैं आपको बता सही, सकती हूँ. That's the सही. one thing that I would. अगेन हमारे यहाँ कुछ बज़वर्ड्स होते हैं, कुछ फिनोमिना चलते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट जेनजी. अब तो जेन अल्फ़ा आ गई तो इससे जेनजी का थोड़ा सा कम हो गया, बट जेनजी एक बज़वर्ड बन गया था. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं पूछूं कि इफ़ अल्फ़ा वाज अ पर्सनैलिटी, तो एक वो आप उसका इंस्टाग्राम का बायो जेनजी समझते हो उसको क्या लिखते हैं, कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन? एंड द चैलेंज इज़ कि आप इसमें सस्टेनेबिलिटी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. करना भी नहीं चाहती. बस सही है. ज़बरदस्त. Extremely fearless, resilient, not afraid of anything. Bring it on. Bring it on. हमारे कुछ अब होंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस और इसमें आपको बस फ़ौरन से हमें जवाब देना है. तो सिंस यू हैव वर्कड इन टेलीकॉम एंड ईवी, इफ़ यू वर टू पिक अप अगेन वन सेक्टर, व्हिच it would be? EV. The leadership advice you were given that turned out to be completely wrong? Don't get very close to your employees. पक्की बात है. हाँ. सही. एडवाइस मिली थी कि बहुत ज़्यादा you keep a distance. I disagree. सही है. चलें, ये अच्छा हो गया. One thing that surprised you about running a company in Pakistan that no one warned you about? Warned, yes. But the amount of red tape I had, I didn't think that it was going to be this huge. But it's a learning. सही है. So, yeah. So, किसी ने आपको कोई ऐसी एडवाइस दी थी कि यार ये जा रहे हो, देख रहे हो, ऐसे मत करना, लेकिन आपने फिर भी वो किया और फिर आपको या तो रिग्रेट हुआ या आपको पता चला कि नहीं यार वाकई में सही कह रहे थे ये? रिग्रेट नहीं होता मुझे. सही है. वो जो हो गया, जो भी चीज़ हो गई उसने आपको कल के लिए तैयार कर दिया. बिल्कुल That's ठीक है. number one. So, ज़बरदस्त. लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें कही थी और हमने कहा चले वो one step at a time, एक कदम, हाँ. और देखते हैं आगे क्या आता है. फिर दूसरा. एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि यू टॉक्ड अबाउट अलॉट बीइंग पाकिस्तानी, तो आप किस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं, कराची की रोड्स या पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी? ओ ब्यूरोक्रेसी. सही. रोड्स का तो कोई मसला ही नहीं है. क्या बात कर रहे हैं आप? What are you talking about? The one Pakistani city that people are still sleeping on EV adoption that you think?
every city and no city. Amazing. Really, every Interesting. city and no city. जहाँ adoption हो भी रही है, सही है. थोड़ा ज़रा people are still thinking about it, so मैं सही उसको है. अभी complete adoption नहीं कह सकती. सही है. और जहाँ नहीं हो रही वहाँ नहीं हो रही. सही है. तो एक शहर का नाम नहीं दे सकती मैं आपको. Any habit that you think makes you a better leader, but most people think that it's a strange one. I've been actually told. I try to make a successor, अपना successor out of each and every team member of mine, regardless of their seniority. And people find that very strange. क्या मतलब है कल के बच्चा तुम्हारा successor बनेगा? मैं कहती हूँ मुझसे बेहतर बनेगा. इंशाल्लाह. नहीं, एंड अमेजिंग यार. ये वाली जो थॉट लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, क्योंकि फॉलोअर्स तो बहुत सारे लोग बना जाते हैं, बट देयर आर ओनली फ्यू लीडर्स जो और लीडर्स क्रिएट कर जाते हैं. सो कुडोस टू यू. द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन पाकिस्तानी बिजनेस कल्चर राइट नाउ? Strait of Hormuz. Absolutely अल्फा. और साथ में कुछ और भी. अच्छा, चलें, अल्फा ज़बरदस्त. तो बन चुकी होगी ना 5 साल में. इंशाल्लाह. तो वो तो सेल्फ पे चल रही होगी. अगर हमने उसकी एक्सपर्टीज और उसकी लर्निंग को लेवरेज करके कुछ और ना बनाया, देन इट्स अ फेलियर ऑन माय पार्ट. Our final mic drop question for rapid fire round. 10 years from now, if Elfa becomes, inshallah, the brand that changed how Pakistan moves, what do you want people to say was the real reason it worked, and not the bikes, not the funding, but the real reason? Is the feeling that we were able to create with the product for people, really. It's कि you brand का DNA only feel memory भी इसी तरह ही होती है. Yeah. It's either a sense of smell or a happiness trigger की होती है, और एक Yeah. it's I would want people to remember अल्फा कि ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, हमें Yeah. पढ़ाया, हमारे साथ खड़े थे, बीच में खुद भी पैर उनके डगमगाए, जी. but they were there and they were able to create a ज़बरदस्त. connection. That's how I would want to be remembered. ज़बरदस्त. भाई जैसे हम अगर फिटनेस में जाते हैं, जिम करते हैं, तो वो जो मसल मेमोरी होती है, Yep. तो वो आप दैट्स हाउ यू वुड लाइक टू रिलेट टू अल्फा, राइट? Yep, yep. चलें, ज़बरदस्त. एंड आई कैन सी इन द एंटायर डिस्कशन के, आई थिंक वो आपके ब्रांड की डीएनए में भी Yeah. वो चीज़ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, सो थैंक यू सो मच हुमा फॉर बीइंग विद अस. इट वाज लवली हैविंग कन्वर्सेशन विद यू. आई होप यू एंजॉयड बीइंग एट BMLS स्टूडियो. Any advice that you would like to give to the young marketeers या for our entire community of marketeers? क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? Thank you very much for inviting me. I mean, it's been a great conversation having with you. Alhamdulillah. It's been really my pleasure. And advice मैं नहीं दूंगी. Advice मुझे लगता है कि especially the young generation है ना, वो हमें दे रही है आजकल advice. ऐसा ही है. मैं सिर्फ इतना ज़्यादा कहूँगी ChatGPT efficient कि है. हाँ बिल्कुल. सही. and मैं सिर्फ आई थिंक इतना कहूँगी कि सिर्फ उस चीज़ से ना डरें कि वो व्हाट इज़ माई, इसी भी हम कंफ्यूज करते हैं विजन और गोल को. Yeah. हम बहुत दूर को देखते हैं और हम कहते हैं ओ ये कैसे होगा. जस्ट डोंट बी अफ्रेड. आई मीन द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज वेक अप इन द मॉर्निंग, टेक दैट वन स्टेप. Yeah. Not 2 steps, not 3 steps, not 10, just one step, and that's all you have to do. And you'll do so well in life. I mean, really. सही. नहीं, चलें, थैंक यू सो मच टू यू, टू कदीर भाई एंड एंटायर योर टीम फॉर बीइंग सो काइंड विद अस, एंड वी आर लविंग द अल्फा राइड. एंड सून यू विल सी अनदर वीडियो जिसमें मेरा अल्फा का पूरा एक्सपीरियंस भी आ रहा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. You have to be honest about your नहीं, experience. I'll be as खराबियाँ honest. होंगी तो वो भी बोलेंगे. I'll be as honest as you were in the entire podcast. Awesome. So, inshallah. So, thank you so much, viewers, for watching this video. It was lovely having conversation with Ms. Humayya Khattak, who is CEO of Alpha Bikes, brand of Alpha EV Technologies Private Limited, which is also a part of Wave Tech Group. So, we will see you shortly in our next episode. This is Sohaib Hassan signing off. Thank you.